Welcome to this live session of mine, Smart Teaching. My name is Manju Singhania, and I'm the founder director of Joy of Learning Foundation. I'm also an early communication interventionist, teacher training consultant, and master trainer for programs from the Hannon Center, Canada. So it's wonderful to have you all over here. I think just some people are here. Okay, anyway, I'm starting. So, a very warm welcome to all of you from Joy of Learning Foundation. A big namaste. Joy of Learning Foundation is a project of the Shanti Welfare Trust, which is based in Dehradun. And we work with children with developmental difficulties, do a lot of intervention programs, including early intervention, also working with children with learning difficulties and doing a lot of programs with children with autism based on a lot of communication programs with children who are on the autism spectrum. Thanks, Indu. Thanks for the best wishes. I know it's a very special group today that I'm going to be talking to. Teachers as well as some parents. I'm expecting some parents to be here too. So, indeed, that's a very, very special group when we talk about teachers, particularly special educators, the people who are working with children with special needs or who have a heart, who do a lot of volunteer work also. So, I'm talking about all kinds of professionals who have anything to do with teaching as well as, particularly teaching children with special needs. So I know it's a very, very special group over here. And we just had the Teachers' Day about 2 days back. So I want to wish all of you a very, very happy Teachers' Day. आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भले ही थोड़ी देर से आ रही है शुभकामनाएं बट अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर जितने भी लोग हैं जितने भी टीचर्स हैं particularly with working with the mainstream children typically developing children in the mainstream schools in all the schools all over the world and in India they must have celebrated Teachers Day in many many different ways, got a lot of gifts and children coming on to wish you a very very happy Teachers Day. ये हमेशा होता है टीचर्स डे पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आपके सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि आज टीचर्स डे है, हम लोग प्लानिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें टीचर को देंगे, सबसे फेवरेट मैम कौन है, उनको चीज़ें देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। दैट इज़ विद चिल्ड्रन बट you all know that our children may not be able to do this, है ना? तो हो सकता है इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि हम ये करेंगे टीचर के लिए, वो करेंगे, तो वो उतना प्लान आउट शायद नहीं कर पाएँगे एंड वी ऑल नो दैट, है ना? एज़ स्पेशल एजुकेटर्स. So children with special needs and as we are working with them, हालाँकि उनको पता नहीं है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन हम बहुत सारा काम करते रहते हैं. वी कीप डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, we take group sessions and individual sessions, we work, we plan out strategies और उनके साथ सारा कुछ काम करते रहते हैं. But they may not be, although you know some children might be aware of it, but they may not have the language to actually come and thank you for all the work that you're doing. Uh, the kind of work we do a lot of assessments. हम हमेशा बच्चों को देखते रहते हैं, उनके लेवल का assessments करते रहते हैं. We have a lot of discussions about them कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किस लेवल पर है, उसके साथ क्या काम करना चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं उसकी. So all these things we keep doing that. We have a lot of discussions. We make individual education plans, IEPs, आप सबको पता होगा. As special educators and even parents, we keep working with children. We make individual, एक एक बच्चे का
हर बच्चा अलग तरीके से समझता है हमारी बातों को, हर बच्चा अलग तरीके से शायद रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, बट दैट इज़ व्हाई वी नीड टू मेक इंडिविजुअल प्लान्स। हर एक बच्चे के लिए अलग प्लान बनाना पड़ता है, नॉट लाइक पूरे क्लास में 30 बच्चे हैं और आप एक साथ उनके साथ काम करना शुरू कर दो। दैट यूजुअली डजंट हैपन, वी डोंट डू दैट, है ना? तो हमें इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनाने पड़ते हैं। देन इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग ट्रेनिंग प्लान्स फॉर देम, वी स्टार्ट प्लानिंग आउट एक्टिविटीज़ कि किस तरह से इनके साथ और आगे भविष्य में कैसे ले जाया जाए। सो ऑल दीज थिंग्स वी कीप प्लानिंग फॉर देम। वी वर्क ऑन एवरी डोमेन, ऑल द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो हैं, ऑल द प्रोफेशनल्स जो बैठ के काम करते हैं बच्चों के साथ। There are physiotherapists, we work on gross motor skills. There are occupational therapists working on fine motor skills, self-help skills. There is the speech and language therapist जो उनके भाषा के विकास और communication पे काम करते हैं. There are special educators. We are working on cognitive skills, social skill development, academic skills. So there are a lot of things, and a group of people are all working towards them. We all know that. And while making all those individual education plans and individual training plans, what we do is we make SMART goals. SMART, SMART goals. आप सबको पता होगा, है ना? एज स्पेशल एजुकेटर्स हम जब आईपी बनाते हैं तो हम गोल्स बनाते हैं, स्मार्ट गोल्स बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? और इन जब हम स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्मार्ट गोल्स। हम गोल्स इस तरीके से बनाते हैं ताकि स्पेसिफिक रहें गोल्स, मेजरेबल रहें। स्पेसिफिक मतलब स्टेट किया जा सके कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट हो, और आज की तारीख में बच्चा यहाँ पर है तो यहाँ से वहाँ तक वो कैसे हम उसको ले जाएंगे। देन वो गोल्स मेजरेबल भी हो। हाँ, कैसे पता चलेगा कि प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है? तो वी मेक मेजरेबल गोल्स सो दैट इट्स ईजियर टू मेजर कि कितने स्टेप्स हम आगे बढ़े हैं। वी ऑल्सो मेक गोल्स विच आर अचीवेबल ताकि वो बच्चा उन गोल्स को अचीव कर पाए, राइट? नॉट के अनरियलिस्टिक गोल्स ऐसे कुछ बनाए जो अचीव ही नहीं हो पाए। तो अचीवेबल गोल्स बनाते हैं हम ऐसे गोल्स बनाते हैं जो रिलेवेंट हो, बच्चे के लिए रिलेवेंट हो, और ऐसे गोल्स जो टाइम बाउंड हो। मतलब ये नहीं कि हम अनलिमिटेड टाइम के लिए काम करते रहेंगे, बट वी वर्क विद अ टाइम बाउंडेशन। वी नो दैट वी विल बी वर्किंग फॉर दिस, से फॉर अबाउट 3 months और 6 months। उसके लिए हम ये स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, राइट? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस, ठीक है? बट वी ऑल्सो नो डीप इन आवर हार्ट दैट एज स्पेशल एजुकेटर्स वी डू ओ आवर चिल्ड्रन अ लॉट, है ना? वी आर हियर बिकॉज दे आर हियर। तो हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट? So what we need to do is, the best we can do for them is to give them our best. So today, although you keep making the smart goals, today we'll be talking about how to become smart teachers. SMART, smart teachers. And I'll be breaking each letter over here, and let's talk a little bit about how we can become smart teachers. With a crown on our head, it says smart. Okay, so starting with the first letter, that is smart, which is being sensitive and sensible. These are two very important words, sensible and sensitive. Being sensitive towards the children and their parents. So what can we do for that? First of all, try to walk in their shoes and see. It's not easy for them, right? It's not easy if you're not able to walk. It's not easy if you're not able to talk and express. It's not easy if you're not able to see. So it is a difficult life. We need to understand the situation and also the situation of the parents. Okay. One thing we need to understand, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि the children are not being difficult just because they want to be difficult.
ऐसा नहीं कि उन्होंने सोच रखा है कि मैं इनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट करना चाह रहा हूँ, बट they are not able to do that work. Hmm? So that is why, we need to understand the situation that they are. There are certain conditions that उनके अपने conditions है जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पा रहे, है ना? एंड वन थिंग वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर इज जब भी हम बच्चों के साथ बात करते हैं, right? And as special educators, as parents of children with special needs, we know that children always understand much more than they can actually express. एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होता है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है। आई होप यू ऑल नो दैट, है ना? तो जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होता है, जो वो भाषा का वो ज्ञान जो दूसरे बोलते हैं और हम समझते हैं, सो दे ऑलवेज अंडरस्टैंड, इट्स ऑलवेज मच मोर देन द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है, so we cannot start thinking that he's not understanding anything. So when you talk in front of the child, talk very carefully. Use the kind of words which actually don't degrade the child. Okay? या फिर उसको ये एहसास न दिलाएं कि मतलब क्या बोला जा रहा है हमसे. So remember that. That is a very important thing to remember, and that is the point of being sensitive. Don't always go by the checklist. ये नहीं कि आपके पास, आई नो एज स्पेशल एजुकेटर्स वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ चेकलिस्ट. हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज के चेकलिस्ट होते हैं, सोशल स्किल्स के चेकलिस्ट होते हैं, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के चेकलिस्ट होते हैं. सो डोंट गो जस्ट बाय द चेकलिस्ट. ऑफ कोर्स दे आर इम्पॉर्टेंट, चेकलिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वो हमको गाइडलाइन देते हैं. बट what we need to do is we need to know the child also. Know the child first, okay? And then see that wherever the child is, of course take the help of the checklist, and फिर आगे हम उसके साथ काम करते रहते हैं. Important thing is to remember that he is a child first. हर बच्चे की अपनी ज़रूरतें होती है, हर बच्चे के अपने डिमांड होते हैं, हर बच्चे के अपने इश्यूज होते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना? Just because he's a child with special needs, we cannot forget that he is also a child. तो हमेशा ये याद रखें कि पहले वो बच्चा है और उसके बाद हमारी कोई डिसेबिलिटी आती है वहाँ पर, उसके बाद हम उसके साथ काम करते हैं. सो टीच द चाइल्ड or behave with the child as a child first. Remember that as a child. So that is all about being sensitive and sensible. Let us go to the next letter, that is M. M stands for being meaningful. Yeah, when you do the teaching, we should be able to teach meaningfully to that child. ये नहीं है कि बस जस्ट बिकॉज हमने चेकलिस्ट कहता है कि इस पॉइंट के बाद आपको इस पॉइंट पे काम करना है, तो आप बिना सोचे समझे उस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाए, है ना? सो वी नीड टू टीच मीनिंगफुली, अंडरस्टैंड द चाइल्ड, सेट द गोल्स विच आर अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड. बिना मतलब बच्चा एक लेवल का है लेकिन आपने समझ रखा है कि वो दूसरे लेवल का है, और या फिर हम उसके साथ एकेडमिक वर्क ABCD करे जा रहे विच इज़ नॉट गेटिंग इट, है ना? तो वेट, लुक एट द चाइल्ड एंड सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ओवर हियर, क्या है डिफिकल्टी. ट्राई टू नो अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट. आपने स्पेशल एजुकेशन कर लिया है, ठीक है, बट रीड अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑल्सो. हर बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उसकी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें. या थैंक यू सो मच गणेश नटराज देवराजन for that comment. Thank you so much. Thank you for being present. Um, yeah, and the other point of being a meaningful teacher, teacher who's actually teaching meaningfully, try to get the exact level of understanding of the child. Most of the time हम गोल्स बना लेते हैं, हम उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट लेवल जो है बच्चे का, उसका लैंग्वेज लेवल एग्जैक्टली क्या है. अगर बच्चा
एक फर्स्ट वर्ड यूज़र है ना? इसका मतलब उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज अगर फर्स्ट वर्ड तक का है। कई बार होता है कि बच्चा हमारे सामने फर्स्ट वर्ड यूज़र लेवल का बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन मे बी वी आर टॉकिंग टू हिम इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, बहुत बड़े-बड़े सेंटेंसेस बोल रहे हैं हम। 2-3 2-3 सेंटेंसेस के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, व्हिच द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड देन हमको लगता है कि ये तो बात ही नहीं मान रहा है, ये हमारी बात सुन नहीं रहा है ना? सो ट्राई टू गॉज द लेवल ऑफ द चाइल्ड, लेवल ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके साथ बातचीत करें या उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन या जो भी हम उसको पढ़ाने की कोशिश करें, विल डू दैट, है ना? जब भी आप नया कोई नॉलेज उसको देने की कोशिश कर रहे हो बच्चे को, ऑलवेज ट्राई टू लिंक इट विद द ओल्ड नॉलेज, क्योंकि हमें पता है कि जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, अ, कई बार मेमोरी की इश्यूज़ हो जाती हैं। वो जो पहले का नॉलेज है वो रिटेन नहीं कर पा रहे। तो अगर वो रिटेन नहीं कर पा रहे और वो उस तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करें, हम पुरानी चीज़ को थोड़ा-सा रिकैप करें, उसके बारे में उसको लिंक करने की कोशिश करें। जब ऐसा करते हैं, तो नया नॉलेज थोड़ा आसान हो जाता है टू गेट द न्यू नॉलेज। ओके? डोंट जस्ट गो बाय द सिलेबस। ये मत देखो कि आपके अगेन कमिंग बैक टू द चेकलिस्ट एज़ आई सेड, है ना? सिलेबस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं कि ये है तो इसके बाद मैंने ये पढ़ाना है, ये है मेरे हमारे चेकलिस्ट में या हमारे प्लानिंग में ये आ रहा है। ओके? सो डोंट गो जस्ट बाय दैट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लग रहा है। हो सकता है कुछ टाइम ले रहा हो बच्चा समझने में, बातों को समझने में, एंड रिएक्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में। ओके? सो गिव अ लिटिल टाइम टू द चाइल्ड बेसिकली। One of the most important thing is OWL, OWL, which means observe, wait, and listen. Okay, that is three very important things. First, try to observe the child. ये नहीं कि आप सीधा जाके उसको okay, this is my plan and this is what I'm going to do. No, wait, sit with the child, observe the child a little bit, gauge his mood a little bit, try to see what is happening. ठीक है? उसके बाद आप जब ऑब्जर्व करें, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व, ऑल्सो ऑब्जर्व द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ओके? कि किस चीज़ में अगर बहुत सारी चीज़ें उसके सामने हैं, तो जो भी चीज़ वो उठा रहा है या एक्सप्लोर कर रहा है, यू ऑब्जर्व दैट एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इज़। और थोड़ा-सा हम वेट करें, वेट फॉर हिम टू इनिशिएट, थोड़ा-सा इनिशिएट करे या कुछ बोले या कुछ बता रहा हो, एंड देन लिसन प्रॉपर्ली। Listen to the child, because children, they use this, children who can use their speech will use that, will tell you something, but children who are non-verbal are also trying to tell you something. Okay, so try to see what is the non-verbal language level of the child. वो बिना बोले, बिना भाषा का इस्तेमाल करे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको आप देखो। उसके सटल इनिशिएशंस जो हैं, उसके सटल फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, जेस्चर्स हैं, तो आपको ये थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। ओके? गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्च्युनिटी टू थिंक। कई बार ये होता है कि हम जस्ट इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि अच्छा ये करना है, ये करना है, बट नो, गिव द चिल्ड्रन टाइम टू थिंक। हमें उनको ब्रेन को, उनके कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज़ करने की क्षमता आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए अपॉर्च्युनिटी भी देनी पड़ेगी। If you keep giving the instructions, if you keep telling the child what to do, कि इसमें रेड कलर कर लो, आप रेड कलर उठाओ, अब आप ये करो, अब आप जंप करो, so all those things the child will be dependent on you. So give the child a little opportunity to think, to problem solve. जब कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है ना? एंड इफ अदर्स कीप सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम्स, he'll never be able to use his brain. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उसको इतना टाइम दें कि वो खुद थोड़ा सोचे। जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, देन ट्राई टू हेल्प आउट। डोंट ऑलवेज ट्राई टू बी अ हेल्पर। ये नहीं कि बस थोड़ा-सा आपको कई बार हम इसमें भी पड़ जाते हैं कि ओहो! बेचारा स्पेशल नीड का बच्चा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तो मैं हेल्प कर देती हूँ।
try to, give some time, wait, observe, wait and listen, as they say. तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, एंड देन चाइल्ड मे बी एबल टू, ही कैन सरप्राइज यू एक्चुअली। हो सकता है वो आश्चर्यचकित कर दे आपको कि अगर थोड़ा सा मेरे को टाइम दो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। या, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लेटर ए, SMA. So A is being adventurous. So think out of the box. Don't always उसी ढर्रे से मत चलो कि मुझे ये पढ़ाना है, इस तरह से करना है। बट जस्ट एक ही टॉपिक को हम शायद कुछ इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना? हर कोई एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, एक ही चीज़ें कर रहा है, लेकिन हो सकता है हम कुछ और करके कर सकते हैं। आप कमरे में नहीं बिठा के से उनको बाहर ले जा सकते हो, बाहर का कुछ एक्सपीरियंसेस दे सकते हो, थीमैटिक टीचिंग कर सकते हो। जब आप थीम के अकॉर्डिंगली कोई टीचिंग करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपका थीम ट्रांसपोर्ट है, आप ट्रांसपोर्ट की बातें कर रहे हो, टेक द चिल्ड्रन आउट। आप बाहर उनको ले जाके एक्चुअल ट्रांसपोर्ट्स दिखा सकते हो, ट्रांसपोर्ट्स में बिठा सकते हो, लेक देम सिट ऑन अ स्कूटर, सिट इन अ कार, सिट इन अ ट्रेन। अगर आप प्लेन में बिठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना? बट दैट इज वॉट, डू समथिंग डिफरेंट। उनको कोशिश ये करो कि आप अ, ऐसी चीज़ें लेकर आओ क्लास में, बच्चों के लिए इतना मेहनत करो कि ऐसी चीज़ें लेकर आओ या ऐसी चीज़ें उनको दिखाओ या उनको एक्सपीरियंसेस दो। सो इट मे बी, you know you also be adventurous and let the children also be adventurous. Make teaching exciting. That is a very important thing. Unless uh, मतलब कुछ अच्छी बात रहे टीचिंग में, इफ इट्स अ वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस टीचिंग, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आप बच्चों को तो छोड़िए, हम बड़ों को भी अच्छी नहीं लगती, है ना? सो टू बी टू डू सम एक्साइटिंग टीचिंग, यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट इट इन द फर्स्ट प्लेस। आपको खुद को भी एक्साइटेड रहना पड़ेगा कि ओ यस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इन माय क्लास, राइट? So if you are a teacher who gets very excited about certain things, and कि मैं ये चीज़ आज ले जा रही हूँ, आई एम श्योर आई हैव दैट चाइल्ड इन माय क्लास जो थोड़ा स्ट्रगल करता है, तो इस चीज़ से वो ज़्यादा समझ जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। ओके, so bring in new things. Think about how to make them understand more. You remember that proverb? I think it's a Chinese proverb. If the children don't understand the way you teach them the way that they understand. Okay, so try to do that. Try to think about different ways, and also at the same time generalize the concepts. Generalization is a big issue with children with special needs. They learn in a specific way in whatever that you've taught them in the classroom is like being in a box, and they learn that. Okay, so but if you ask for that knowledge outside of the classroom, sometimes the children don't understand that because they have learned it in the classroom, and in their brain it's like different boxes. What you've learned in the classroom, what you've learned outside. So being different and being you know taking them to different places to teach one particular concept. If you're teaching colors in the classroom, take them out and teach colors about the flowers and different colors in the nature. There are so many things to do that. Okay, so generalize your teaching. That's about being adventurous. Now SMART में R है respectful. I think this is one of the most important qualities, most important thing that we can do with a child. Be respectful. Respect the child. Uh, we have a tendency that when you have an important person in front of you, you start speaking very respectfully, and maybe the tone of voice is also like that. But you should understand that child also is a small child. He needs respect. Okay, so respecting the child is very important. Keep in mind, you always need to respect the child. And how do you do that? you know so you do that by actually giving them the opportunity to make choices. It is their choice. Ask them to decide what they want to do, and give them the power to decide. It's simple thing. I'm not talking about a big decision about uh, whom to vote in the coming elections, but
We're talking about a simple thing. Which color do you want to paint with? Is it yellow or is it red? Let them decide. Don't give them a pencil and say, this is what you need to do. Okay, so that is something. And then the other thing is you need to listen to them. First of all, listen to what they're trying to say. And when you listen to a child, what happens is you're giving subtle indications to the child. You're telling the child that you're interested in the child and you're interested in his topic. So that is why you're listening so intently. So trying to do that, listen to the child, show an interest in their conversation. You want them to show an interest in you and listen to you, so you need to do that first. Okay, so that is something that we need to do. Understand that having special need can mean having a processing difficulty. Processing difficulty is something, when you listen to certain thing, it goes into your brain and you process it. And say for example, somebody asks you a question. Okay, so you listen to the question and it goes into your brain, you keep processing the answer and you come out with the answer in a jiffy. Yeah, we do that because in our head the processing takes place really fast. But we need to understand children with special needs, most of them, will have a processing difficulty. When they hear your sentence, when they hear your question, it takes time for them to process it, to understand what you're trying to say, and then come out with an answer. So give them that time. Don't say, okay, you're not answering me, so here, take this and start doing it. No, wait for a little while, see what the child says, give them a hint, give them a clue, ask them what they want, and then actually give them. If doing all that doesn't help, then maybe you can actually say, okay, I think you want this, so I'm giving you this. Okay, but all said and done, understand that there is a processing difficulty, so that will take time. you know Children who are nonverbal will definitely struggle, because they are thinking about what to tell you, how to tell you. So give them an opportunity, give them time, may give them tools with which they can maybe tell you. Try to use pictures, try to use the communication boards, use picture exchange communication system for them to teach about communication. So give them an opportunity, basically. Make them feel important. When everybody, we all love being important. So similarly, every child likes being important. Sometimes parents, they child is an important part of their life, but maybe they may not act like that. Okay, so make them feel important. That is a very important thing. Talk positively with the children. Try to avoid as much as possible your negative remarks. Okay, so that is an important thing. Being respectful. I hope you all understand that, and I'm sure all of you are respectful to the children. And now coming to the last T, last letter in the word smart, that is T, and we are putting that T for training. you know Training is very important. Maybe you've done your special education, I don't know how many years back. सो अगर जब भी आपने स्पेशल एजुकेशन का पढ़ाई की हो सकता है कुछ टाइम निकल गया हो उस चीज़ के लिए, तो आपको अपडेटेड रहना है, कीप योर सेल्फ अपडेटेड. Yeah, try to get training in new things. Maybe you're working with children with special needs. Nowadays there are many children with autism. So wherever you go, maybe in the schools, there are children who are included in the schools, in the mainstream schools, in the government schools, in the private schools, स्पेशल स्कूल्स में तो हैं ही आपके बच्चे. तो जहाँ भी आपको दिखाई देते हैं, and then you need to understand that, okay, I may not know much about this child, so let me find out a little bit. So get trained in new things. The other thing is talk to people and talk to other special educators. Try to find out what solution they have used. Maybe there is something that they have tried and it's worked. तो वो हुआ हो तो दूसरों से बात करना, अपने टीम मेंबर्स से बात करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Always work in a team. Then read as much as possible. Do a lot of reading.
इफ़ यू डोंट नो सर्टेन थिंग्स, फाइंड आउट। आजकल सबके पास फ़ोन है, गूगल एक सेकंड में आपको बता देगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, चैट जीपीटी है। तो फाइंड आउट, रीड अबाउट थिंग्स, सॉल्यूशंस, कि अगर ये बच्चा इस तरीके से नहीं कर रहा है काम, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या और है जो हम कर सकते हैं, या इसकी दिक्कत क्या है, किस वजह से वो नहीं कर पा रहा है चीज़ें। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ट्राई टू लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स, है ना? हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, वी नो दैट, एंड नो टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर ऑल्सो अलाइक। बिल्कुल एक जैसे होते ही नहीं हैं। अगर आप 10 बच्चे ले लें जिनको ऑटिज़्म है, तो 10 अलग-अलग प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। या सो वी नो दैट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद कुछ बच्चों के साथ काम आती हैं, कुछ बच्चों के साथ नहीं काम आएँगी। सो ट्राई टू लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स, एंड डिफरेंट चिल्ड्रन के साथ डिफरेंट मेथड्स काम करता है। विथ समथिंग माइट वर्क विथ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, इट मे नॉट वर्क विथ चिल्ड्रन विथ डाउन सिंड्रोम, मे नॉट वर्क विथ चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पॉल्सी। तो आपको अलग-अलग स्पेशल नीड के लिए, अलग-अलग जो डिसेबिलिटी है उसके साथ काम करने के लिए शायद थोड़े मेथड्स की डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप देखिए कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, नेट पे मिल जाएँगी, गूगल पे मिल जाएँगी, वेबिनार्स होते रहते हैं बहुत अलग-अलग चीज़ों के लिए। इसके लिए मैं कहूँगी, कीप इन टच विद जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन। वी आल्सो डू अ लॉट ऑफ वेबिनार्स एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, नई-नई चीज़ें। So that was about training. So the full word, I know all these things. ऐसा लगता है कि हम यू नो इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट द फैक्ट इज़ वी आर मल्टीटास्किंग गॉडेसेस, है ना? आप घर पे भी काम कर रहे हो, बाहर भी काम कर रहे हो, बच्चों के अलग-अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं, अलग-अलग तरीके से आप देख रहे हो, अलग-अलग तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहे हो। सो वी आर काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रिमेंबर कि अपना भी ध्यान रखना है हमको। यू हैव टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। वो सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड कीजिए, आप बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। यू हैव ग्रुप ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। आप फेसबुक पे आप बहुत अलग-अलग ग्रुप्स मिल जाएँगे, जो स्पेशल एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो आजकल उन्हीं का ज़माना है। सो गेट इन टच, बी इन दैट ग्रुप्स, फाइंड आउट व्हाट न्यू थिंग्स इज़ हैपनिंग, build a support system, talk to people, connect with people, that is important. And stress, of course, stress तो होता ही है, but we need to burst that stress bubble. स्ट्रेस बबल को भी हमको थोड़ा-सा पिन लगा के तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, एंड Indu, I know you're present over here, you do a lot of meditation, and there are wonderful videos on your page as well, your YouTube channel as well. So I would suggest people to see that. Um, so yes, meditation is a great way of releasing stress and bursting that stress bubble, as I say. स्लीप प्रॉपरली, अच्छी तरह से आप सोइए ताकि अगले दिन आप फ्रेश रहें और बच्चों को पढ़ाने में आपका एनर्जी बरकरार रहे। मेक दैट कनेक्शन, कीप कनेक्टिंग विद पीपल, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लाफ मोर ऑफन, जितना हो सके आप कोशिश करें कि आप हँसिए, फाइंड आउट अपॉर्च्युनिटीज़, उस थोड़ा मौका निकालिए हँसने के लिए। या सो I mean, laughing a little bit, of course, bursts that stress bubble. So find out the opportunities for that. Um, before I finish, I want to tell you this story of the starfish. Yeah, I'm sure many people may have heard it also. तो ये एक छोटी सी कहानी है स्टारफिश के बारे में। जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल द स्टोरी इन हिंदी। एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन एक व्यक्ति जो है वो समुद्र के किनारे सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे थे, ठीक है?
सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे समुद्र के किनारे। तो वहाँ पे उसके उसके एक रात पहले हाई टाइड था। बहुत सारे दूर तक पानी आ जाता है, जैसे आपको पता है हाई टाइड में। तो दूर तक पानी आ गया था और बहुत सारे स्टार फिश जो है वो समुद्र के किनारे पड़े हुए थे। और सुबह-सुबह ये व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक कर रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्टारफिश पड़े हुए हैं और वो अपना रास्ता बना के निकलते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा लड़का जो है वो इस एक-एक स्टारफिश को उठा के समुंदर में फेंक रहा था। सो दिस पर्सन, उन्होंने पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हो आप? यू नो तो उसने कहा कि मैं ये स्टारफिश जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं इनको समुद्र में फेंक रहा हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे रुके रहे एंड अगर धूप आ गई तो ये सारे स्टारफिश मर जाएंगे। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके उनको वापस समुद्र में फेंक रहा हूँ। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अरे, तुम देख नहीं रहे हो कि इस बीच पर हजारों स्टारफिश है, इतनी सारी स्टारफिश है, आप किस किस को बचाओगे, है ना? आप सारों को तो आप बचा नहीं सकते हो। तो उसके सामने ही वो बच्चा क्या करता है, एक स्टारफिश उठाकर वो समुंदर में फेंक देता है और फिर वो कहता है कि मैंने इस स्टारफिश को तो बचा लिया, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक बच्चे को भी थोड़ा-सा डिफरेंस करें, अगर आपके पढ़ाने के तरीके, आपके काम करने के तरीके से एक भी बच्चे को सॉरी, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। अगर आपके पढ़ाने के तरीके से और आपके काम करने के तरीके से एक भी बच्चे को थोड़ा-सा भी फ़र्क पड़ा है, तो आप मान लीजिएगा कि हम एज़ स्पेशल एजुकेटर, एज़ एन इंसान, हम सफल हुए हैं। वी हैव सक्सीडेड, ओके? सो बट ऑलवेज़ रिमेंबर एट द सेम टाइम दैट इफ यू ऑलवेज़ डू व्हाट you've always done, you will always get what you've always got, है ना? आप हमेशा वही करते करेंगे जो करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। तो कुछ अलग पाने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। या यू हैव टू बी अ स्मार्ट टीचर, अलग करने के लिए, राइट? एंड टीचिंग विद द हार्ट विल ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आप दिल से पढ़ाइए, स्मार्ट टीचर बनिए, एंड देन ऑफ कोर्स स्मार्ट गोल्स तो आप बनाते ही हैं। सो दैट विल बी a great thing for the children and the best gift that you can give back to your children. Thank you so much for being present over here, and I hope it has made a little bit of a difference to at least one person. Then I would be thankful about it. Thank you so much.